السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس سے پہلے جو لیکچر ہوا تھا اس میں ہم نے ریوولٹ آف 1857 کو پڑھا تھا. ہم نے پڑھا تھا کہ ریوولٹ آف 1857 کیا ہے, اس کے کازز کیا ہوئے, اور آخر پر ہم نے پڑھا تھا کہ جب انڈین سولجرز دہلی کو کیپچر کرتے ہیں اور وہاں پر وہ بہادر شاہ ظفر سیکنڈ کو اپنا ایمپرر گھوشت کرتے ہیں. اس سے آگے ہم آج جائیں گے اور سب سے پہلے ہم آج پڑھیں گے کہ ریوولٹ آف 1857 میں انڈین کون سے سینٹرز تھے اور وہاں کے لیڈر کون تھے جو اس سینٹر کو کنٹرول کرتے تھے. وہ لیڈر کون کون تھے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سینٹر اور انڈین لیڈر. سینٹر آف ریوولٹ کون تھا اور اس کا لیڈر کون تھا, ہیڈ اس کو کون چلا رہا تھا. اگر ہم سینٹر کی بات کریں تو سب سے پہلے آتا ہے دہلی. دہلی میں اس آندولن کو کمانڈ کر رہے تھے بہادر شاہ ظفر اور اس کا ایک اپنا آفیسر بخت خان. یہ دو دہلی میں کنٹرول کر رہے تھے اور اس ریوولٹ کو وہاں پر یہ سنبھال رہے تھے. اس کے بعد کانپور میں بھی یہ پھیلا. کانپور بھی اس کا ایک سینٹر ہے اور کانپور میں اس کو نانا صاحب اور تانتیا توپے اس کو کمانڈ کر رہے تھے. اس کے بعد لکھنؤ میں بیگم حضرت محل تھی. بیگم حضرت محل میں آپ کو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنے جو میں نے ایگزام دیے ہیں 2 ایگزامز میں نے اس سینٹر سے کوشچن دیکھا ہے 2 بار, لیکن دونوں بار ایک ہی کوشچن آیا تھا. وہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا. تیسرا ہے جھانسی, جو آج بھی سب کے زبان پر ہے. اگر کہیں پر کوئی عورت لڑاؤ کی ہوگی اس کو کہتے ہیں جھانسی کی رانی. تو اسی طرح وہ اسی پر نام پڑا ہے. جھانسی ایک جگہ تھی جہاں کی لیڈر تھی رانی لکشمی بائی. اسی کو جھانسی کی رانی بھی کہا جاتا ہے. پانچواں ہے الہ آباد. الہ آباد میں اس کو کمانڈ کر رہے تھے لیاقت علی. الہ آباد میں لیاقت علی اس کو کمانڈ کر رہے تھے. اور چھٹا جو سینٹر ریوولٹ کا تھا وہ تھا بہار. اور بہار میں اس کو 2 بندے کنٹرول کر رہے تھے. ایک کا نام تھا کنور سنگھ اور دوسرے کا نام تھا امر سنگھ. یہ 2 بہار میں اس کو, جو میں نے ابھی آپ کو بولا کہ 2 ایگزامز میں نے اس سے کوشچن دیکھا. ایس ایس بی کے 2 ایگزامز میں اس سے کوشچن دیکھا اور وہ یہی تھا کہ بہار میں کون اس کو لیڈ کر رہا تھا. یہاں سے یہ وہاں پر آپ کو آپشن 2 بھی آ سکتے یا ان 2 میں سے ایک آ. کئی جگہ میں نے جو 2 ایگزام دیے وہاں دونوں بار یہ تھا کنور سنگھ آنسر. گو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے وہ کسی میں بھی سے ڈال سکتے ہیں. وہ دہلی کا بھی پوچھ سکتے, وہ کانپور کا بھی پوچھ سکتے, لکھنؤ, جھانسی, الہ آباد یا بہار. ان سبوں نے برٹشرز کے خلاف لڑا. لیکن برٹشرز نے بعد میں کس کی سراہنا کی کہ سب سے زیادہ بریو کون تھا ان لیڈرز میں جس نے بالکل ڈیفینڈ کیا اپنی ٹیریٹری کو. بہت ٹائم تک وہ برٹشرز کو نچاتے رہے. سر ہیوگ روز ایک برٹش آفیسر تھے جس نے کہا کہ رانی لکشمی بائی سب میں سے بیسٹ اینڈ بریویسٹ, یہ بہت ہی طاقتور لیڈر تھی. جن کے خلاف بھی ہم نے لڑا ان سب میں سب سے طاقتور اگر کوئی تھی وہ تھی رانی لکشمی بائی. گو اس طرح ہم نے آپ کو آج بتایا کہ ریوولٹ کے جو سینٹرز تھے اور ان سینٹرز کو کون سے انڈین لیڈرز کمانڈ کر رہے تھے یہ ہم نے ابھی پڑھا. آپ کو یہ اس میں بہت سارا اور بھی تھا کہ کب سٹارٹ ہوا کب ختم ہوا وہ نہیں پوچھتے. میں چاہتا ہوں کہ آپ فضول کا وہ یہ ایس ایس بی کے ایگزامز میں یہ بھی کمپلسری ہوتا ہے واٹ ناٹ ٹو ریڈ.
آدھے بچے کیا کرتے ہیں، وہ بہت سارا پڑھتے ہیں، دن رات پڑھتے ہیں، لیکن ان کو یہ فرق نہیں ہوتی کہ پڑھنا کیا ہے. وہ بھی پڑھتے ہیں جو پڑھنا نہیں ہوتا ہے، اور جو پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا دماغ پہلے ہی بور ہوا ہوتا ہے ان چیزوں سے جو ایگزام میں پوچھتے ہی نہیں ہے. میں نے 2 ایگزامس میں دیکھا یہاں سے کوشچن، اس لیے میں نے اس کو لے آیا ہے یہاں پر. یہ بہت ہی ایزی ہے، یہ کسی کو بھی یاد رہ سکتا ہے. ایسے پڑھاتے پڑھاتے آپ کو یاد ہو جائے گا، اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے. ابھی تک ہم نے پڑھا کہ اس کے سینٹرز کیا تھے اور وہاں پر کون سے رولرز کو کمانڈ کر رہے تھے. اب جب ریولٹ اختتام پذیر ہوا، کیونکہ وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکے، پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے کازز آف فیلئر کیا ہوئے. اگر ریولٹ سٹارٹ ہوا برٹش کے خلاف تو یہ کیوں نہیں چل سکا، اس کے کاز کیا تھے کہ یہ فیل ہو گئی، یہ میوٹینی، یہ ریولٹ فیل کیسے ہو گیا. تو بہت سارے لوگوں کی اپنی اپنی ویوز تھے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ اگر ریولٹ آف 1857 انسکسیسفل تھا، یہ ناکام ہو گیا، بٹ ہیروئک ایفرٹ ٹو ایلیمنیٹ فارین رول، لیکن یہ ایک بہت ہی زبردست کوشش تھی کس کے خلاف؟ ٹو ایلیمنیٹ فارین رول، بیرونی طاقتوں کے خلاف. یہ بہت ہی بڑھیا قدم تھا. حالانکہ ریولٹ آف 1857 انسکسیسفل رہا، یہ میوٹینی کامیاب نہیں، لیکن پھر بھی اس کو ایک ہیروئک سٹیپ تسلیم کیا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے ٹو ایلیمنیٹ فارین رول. اب ہم مین مدے پر آتے ہیں کہ اس کے فیلئر کے کازز کیا بنے. اس کے 2-4 کاز ہیں جن کو ہم یہاں پر ایکسپلین کریں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو ماڈرن ہسٹری ہے، ماڈرن ہسٹری میں پہلے ریولٹ آتا ہے، یہ ایک بیس بن جاتا ہے اس سبجیکٹ کی. یہاں سے ہی پھر دھیرے دھیرے سٹیپ بائی سٹیپ ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. اگر ہم پہلا اس کا کاز یہاں پر دیکھیں گے تو وہ ہے ڈس یونٹی آف انڈینز اینڈ پور آرگنائزیشن. جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے کہ یہ بہت ساری جماعتیں اکٹھے ہوئی، اس میں سپاہی بھی اس میں شامل ہو گئے، زمیندار بھی ہو گئے، پیزنٹس ہو گئے، اور باقی لوگ اس میں شامل ہو گئے، لیکن ان میں یونٹی نہیں تھی، یونٹی کی کمی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ یونائٹ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈ وی فال. وہی وجہ ہوئی ان کی کہ یہ یونٹی کی ان میں کمی تھی، اور پور آرگنائزیشن، یہ آرگنائزڈ نہیں تھے، یہ ان آرگنائزڈ گروپ ایسے ہی شامل ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے. وہ ایک وجہ بنی ان کی انسکسیسفل رہنے کی. دوسرا کیا ہے؟ لیک آف کمپلیٹ نیشنلزم. ان میں لیک آف نیشنلزم تھی، کیونکہ آدھے لوگ اس وقت بھی برٹشرز کا سپورٹ کر رہے تھے، جیسے سندھیاز تھے، جیسے ساؤتھ تھا، وہ اس میں شامل ہی نہیں ہوا. وہ انڈیا میں لیک آف نیشنلزم تھا. اگر لیک آف نیشنلزم نہیں ہوتا تو یہ میوٹینی کامیاب ہو چکی ہوتی، لیکن اس وقت بھی کہا جاتا ہے لیک آف کمپلیٹ نیشنلزم. کمپلیٹلی ہم نیشنلزم کی لیک تھی، ہماری کمی تھی ہم میں، اسی لیے ہم ناکام ہو گئی. تیسرا سٹیپ تھا لیک آف کوآرڈینیشن. میں نے جیسے پہلے ہی آپ کے سامنے یہ رکھا کہ لیک آف کوآرڈینیشن تھا، ہم کوآرڈینیٹڈ نہیں تھے. ہم ایک اپنے راستے سے جا رہا تھا، دوسرا دوسرے راستے جا رہا تھا، ایک ہی راستے پر یہ کوآرڈینیٹ نہیں تھے، ان میں کوآرڈینیشن نہیں تھا. لیک آف کوآرڈینیشن بٹوین سپائز، پیزنٹس، زمیندارز اینڈ ادر کلاسز. یہ بہت سارے کلاسز کے لوگ تھے جن کو اس وقت چاہیے تھا کہ ایک ہی راستے پر چلے، ایک ہی راستے کو چنے، لیکن انہوں نے ایک راستہ نہیں چنا. ان میں کوآرڈینیشن کی کمی تھی، یہ اپنے اپنے راستے چل رہے تھے، جس سے برٹشرز کو فائدہ ہوا ان کو گرانے میں. اور چوتھا جو مجھے لگتا ہے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اس میں، کاز تھا فیلئر کا،
many had different motives for participating in the revolt. ये जितनी भी जमातें इसमें जुड़ी थी, इनके डिफरेंट मोटिव्स थे. इनका एक ही मोटिव नहीं था कि हमको आज़ादी चाहिए इस ब्रिटिश रूल से, वो नहीं था. इनमें से आधे चाह रहे थे कि अगर हमारे अपने लीगल हायर्स नहीं थे तो हमें ये अडॉप्टेड सन देते और उसको ये एक्सेप्ट करते तो हमारा चलता, हमें म्यूटिनी नहीं चाहिए थी, रिवोल्ट नहीं चाहिए था. और सिपाहियों को अपनी परेशानी थी, वो चाहते वो मसला हल हो जाए तो फिर हम तो चले. और इनमें डिफरेंट मोटिव्स थे इसको पार्टिसिपेट करने के, इस म्यूटिनी में शामिल होने के. इनके डिफरेंट मोटिव्स थे, एक ही मोटिव नहीं था. अगर इनको एक ही रास्ते पर ये सारे चलते तो ये सक्सेसफुल होती है म्यूटिनी, ये रिवोल्ट जो था ये सक्सेसफुल होता. लेकिन ये चार जो थे ये इसमें मेन काजेस बने. इस पहला ही था जो डिसयूनिटी था, जो इंडियन डिसयूनिटी ऑफ इंडियंस में यूनिटी नहीं थी. दूसरा था लेक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म नहीं था हमें. और चौथा था कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं था. जो जमातें इसमें चली वो अपने रास्ते चले, वो कोऑर्डिनेट कभी नहीं हुई. और चौथा जो इसमें कॉज था वो था कि ये सब जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके अपने अपने मकसद थे. ये एक ही मकसद के लिए नहीं लड़े, इनको अपने अपने मकसद थे सबों को. और इसी वजह से ये सारे नाकाम हुए, किसी का कोई मकसद पूरा नहीं हुआ. और आखिर में जो भी इसके लीडर्स थे वो सब मारे गए, आधे एक जगह आगे दूसरी जगह. जो इन्होंने बहादुर शाह जफर को एम्परर चुना था उसको बाद में म्यूटिनी रिवोल्ट खत्म होने के साथ ही उसको डिपोर्ट किया गया रंगून, और वो वही जब तक वो मरा नहीं उसको वापस भी नहीं लाया गया. वो इन लीडरों का बहुत ही बुरा हशर हुआ. वजह क्या बना, इनमें ये चीज़ें, ये काजेस थे, और इसी की वजह से वो भी मारे गए और ये म्यूटिनी भी फेल हो गई. अब काजेस ऑफ फेलियर के बाद हम पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, कि रिवोल्ट के बाद के असरात क्या पड़े इंडियन गवर्नमेंट पर, इंडिया में जो गवर्नर चला रहे थे उस पर क्या असरात पड़े. जब रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं हुआ था उससे पहले अलग हालात थे, क्योंकि उस वक्त तक एक कंपनी रूल कर रही थी इंडिया पर. ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1600 में आई थी इंडिया बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए. लेकिन बाद में इन्होंने यहाँ के इन सेल्फिश लीडरों को देखकर इनके मन में भी लालच जाग गई और इन्होंने यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान पर ही कब्जा कर लिया. लेकिन एक तरीके से अगर देखें तो बहुत सारे हालात बदल गए फिर पोस्ट रिवोल्ट ऑफ 1857. जो हालात पहले थे उससे थोड़ा थोड़ा बेहतर होने लगे. कुछ अगर नज़रिए से देखें तो बेहतर हुए, लेकिन अगर दूसरी नज़र से देखें तो बदतर हो गए. वो क्या हुए वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था. देखिए, पहला जो मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि 1857 से पहले कंपनी रूल कर रही थी, जो अभी भी मैंने आपको बताया. लेकिन जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी का रूल एंड हो गया और हिंदुस्तान की जो गवर्नेंस का पूरा कंट्रोल शिफ्ट हो गया ब्रिटिश क्राउन को. अब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर रूल कर रही थी. 1857 के रिवोल्ट के बाद जब एक्ट ऑफ 1858 पास हो गया उसके बाद कंपनी रूल एंडेड, कंट्रोल शिफ्टेड टू क्राउन. जो ये कंट्रोल था, पहले कंपनी का रूल था, ये खत्म हो गया. अब जो कंट्रोल था वो शिफ्ट हो गया ब्रिटिश क्राउन के पास. ये पहला इम्पैक्ट पड़ा पोस्ट रिवोल्ट ऑफ 1857. दूसरा क्या हुआ कि अभी तक सारा कुछ गवर्नर जनरल कर रहा था, लेकिन अब एक मिनिस्टर हुआ करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट में जिसको बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया वाज मेड. अब इसी को पूरा जिम्मेदारी जो थी यहाँ की गवर्नेंस की पूरी जिम्मेदारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथों में आ गई. अभी तक गवर्नर जनरल के हाथों में थी, लेकिन अब पूरा यहाँ का गवर्नेंस का निज़ाम जो था उसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन ने किसको दी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी. तीसरा इम्पैक्ट क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो अब तक गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको अब
गवर्नर जनरल के अलावा अब उसको वाइस राय कहा गया। गवर्नर जनरल का नाम खत्म करके अब वाइस राय ऑफ इंडिया बनाया गया। चौथा क्या था, जिससे कि जो चौथा इम्पैक्ट था, रिवोल्ट स्टार्ट होने में, रिवोल्ट फूटने में सबसे ज्यादा किरदार इसका भी था, जो इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अडॉप्ट किया हुआ था, जिसमें ये लोगों को इलीगली उनकी प्रॉपर्टीज को एनेक्स कर रहे थे। उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अब 1858 के एक्ट के बाद विड्रॉ किया गया। ये जो पॉलिसी थी इनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये अब खत्म होगी। अब ये किसी को भी जबरदस्ती उसकी टेरिटरी को कब्जा नहीं कर सकते थे। और अब इन्होंने क्या किया, अभी तक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये एनेक्स कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सबसे खतरनाक जो ब्रिटिश की पॉलिसी अब तक मानी जाती है, वो था परस्यू द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर उतर आए और ये इन्होंने ज़बरदस्त पॉलिसी अख्तियार की। इससे इन्होंने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी रियासतों को तबाह कर दिया, जिसका जिक्र आगे हम करेंगे कि इन्होंने बंगाल को कैसे ख़त्म किया। बंगाल में इन्होंने क्या किया, वहां पर इन्होंने ये अपनाया था डिवाइड एंड रूल। अब जो 6th हम पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या था कि इनको लगा कि जो म्यूटिनी थी वो स्टार्ट हो गई, सोल्जर्स ने हमको हमारे खिलाफ आवाज बगावत की। तो इन्होंने अब क्या किया कि अब इंडियन सोल्जर्स कम हुए और इन्होंने ज्यादा ब्रिटिश लोगों को इंडियन आर्मी में ज्यादा ले लिया। अब भर्ती जो होती थी उसमें बहुत कम इंडियन को नौकरी मिलती थी, लेकिन ज्यादा इन्होंने अब वाइट सोल्जर्स को, बरतानियावी लोगों को इन्होंने ज्यादा इंडियन आर्मी में लिया, क्योंकि इनको खदशा रहता था कि आगे फिर ना ये कभी रिवोल्ट पर उतर आए इंडियन आर्मी। इसलिए इन्होंने इंडियन लोगों को कम नौकरी देना शुरू किया और बरतानवी लोगों को यहाँ पर ज्यादा आर्मी में ले आए। और छठा इम्पैक्ट जो सबसे बदतरीन इम्पैक्ट माना जाता है, कि जो हिंदुस्तानी लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया, उसमें ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टीज को जलाया, उनको जितना भी नुकसान उन्होंने किया था, जो भी ब्रिटिशर्स को एक्सपेंसेस हुई रिवोल्ट के बाद, उन्होंने क्या किया, वो सारे टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द सप्रेशन वाज थ्रोन ऑन द इंडियन पीपल। वो सारा का सारा इन्होंने हिंदुस्तान के आम और बेगुनाह लोगों पर वो सारा का सारा बोझ, जो भी इनको नुकसान हुआ था, वो सारा का सारा चुकाना किसको पड़ा, आम आदमियों को, यहाँ के हिंदुस्तान के। वो ये क्या हमने अब कंप्लीट हुआ ये हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857, लेकिन इसमें जो लोगों के व्यूज थे वो डिफरेंट थे। कुछ इसको नेशनल वार भी कहते थे और कुछ इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते थे। तो इसमें लोगों की डिफरेंट व्यूज थी, उसमें आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कुछ लोग ये भी पढ़ के जाते हैं कि किसने क्या कहा था, लेकिन जहां तक मेरी एक्सपीरियंस है, मेरी नज़र से कभी नहीं गुजरा इसमें से क्वेश्चन। और ये भी उतना, इसमें से जो क्वेश्चन है ये 2-3 पॉइंट्स आपको ज़्यादा याद रखने, ये नीचे वाले जो पॉइंट्स है ये ज़्यादा आपको आने के चांसेस नहीं है। लेकिन ये आता है, मैंने एक बार देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस एक्ट से विड्रॉ किया गया, तो ये एक्ट जो है ये 1858 का एक्ट है। इसी 1858 के एक्ट के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को विड्रॉ किया गया। वो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। तो अब हम ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर आगे चलते हैं हम, और अब हम सीधे जो फ्रीडम मूवमेंट की बात इन्होंने की थी, तो ये इसको भी फ्रीडम मूवमेंट ही कहा जाता है। लेकिन 1858 जब से आईएनसी का वजूद आया, तो उससे आगे के फेज को हम ज़्यादा फ्रीडम मूवमेंट में ज़्यादा मानते हैं। तो अब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कैसे इनेकाद हुआ आईएनसी का 1858 में। अब हम उसी के बारे में जिक्र करेंगे कि 1858 में जो आईएनसी की बुनियाद किसने डाली और क्या वजूहात बनी उसकी बुनियाद डालने की। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 को इख्तिताम करने के बाद हमने सीधे अब जब किया 1884-85 पर, जो आईएनसी का इनेकाद
हुआ उस वक्त हिंदुस्तान के जो वाइसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। ये क्वेश्चन आप सभी याद रखना, क्योंकि इसमें से पूछा जा सकता है कि जब आईएनसी की इनॉग्रेशन हुई तो उस वक्त वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे। तो उस वक्त जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का जो पीरियड रहा वो 1884 से 1888 के बीच में रहा, और जिसको क्रेडिट दिया जाता है आईएनसी की बुनियाद रखने का वो कोई हिंदुस्तानी नहीं था, वो एक वाइट मैन ही थे जिसका नाम ए.ओ. ह्यूम था। ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और इन्होंने ही हिंदुस्तान के कुछ लीडरों के साथ मिलकर आईएनसी की बुनियाद रखी। आईएनसी की बुनियाद रखने के पीछे इनका जो बुनियादी मकसद था वो चाहते थे कि ये जो कुछ लीडरान हमारे खिलाफ आवाजें उठा रहे थे उनको एक बैनर के नीचे लाया, जैसे वो कुछ लोग थे ये क्या करेंगे हमें। और लॉर्ड डफरिन ने उनको एक दफा डिस्क्राइब भी किया था माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। लॉर्ड डफरिन ने कहा था इनको लगता था कि ये कुछ लोग हैं ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते, चलो इनको बनाने देते हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे, चलो इनको एक बनाने देते हैं। लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी जिसके सामने फिर हमको ही घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन इनको ये ख्याल नहीं था। असल में कहा जाता था कि लॉर्ड डफरिन ने ही ए.ओ. ह्यूम को कहा कि आप ये जो कुछ बंदे हमारे खिलाफ बगावत कर रहे थे आप इनको एक बैनर के नीचे रखो, इनको बताओ कि चलो हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उसमें इनको उलझा के रखेंगे, ये कुछ बंदे हैं ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो हम इसको थोड़ा आपको बताएंगे कि कब इसकी बुनियाद रखी गई आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो पहले इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था। पहले जब ए.ओ. ह्यूम और कुछ लीडर्स इसके साथ मिले तो इन्होंने क्या बनाया, पहले इन्होंने बनाया इंडियन नेशनल यूनियन। पहले इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन की बुनियाद रखी। द इंडियन नेशनल यूनियन वाज फाउंडेड बाय ए.ओ. ह्यूम। इसको फाउंड किया था ए.ओ. ह्यूम ने इन एसोसिएशन विद वेरियस लीडर्स। कुछ हिंदुस्तानी लीडर इसके साथ मिले और इन्होंने ही क्या कहा था कि हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे पुणे में। एक कॉन्फ्रेंस हम दिसंबर 1885 में पुणे में करेंगे एक कॉन्फ्रेंस। लेकिन क्या हुआ कि ये कॉन्फ्रेंस फिर नहीं हो सकी। लास्ट ओवर में इस कॉन्फ्रेंस को चेंज करना पड़ा, क्योंकि कहा जाता है कि पुणे में कॉलरा का आउटब्रेक हुआ, एक बीमारी फूट पड़ी और उस बीमारी की फूट पड़ने की वजह से इस कॉन्फ्रेंस को चेंज करना पड़ा। इसका जो वेन्यू था वो चेंज, पहले ये पुणे में होने वाली थी लेकिन बाद में इसका जो वेन्यू है, इसकी जो जगह थी उसको चेंज किया जाता है। द वेन्यू वाज चेंज्ड एट लास्ट ओवर। जो इसका ये वेन्यू था वो आखिरी मरहले में था कि उसको चेंज करना पड़ा ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कॉलरा, क्योंकि कॉलरा का आउटब्रेक हुआ था। पुणे में बीमारी फूट पड़ी तो इन्होंने मुनासिब नहीं समझा पुणे जाना। इन्होंने सोचा कि वहाँ बीमारी है, ये बड़े बड़े लीडरों को वहाँ ले जाना सही नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने इसको चेंज किया। लेकिन चेंज करने से पहले कि ये कॉन्फ्रेंस करते उससे पहले इन्होंने सोचा कि इंडियन नेशनल यूनियन जो इसका नाम ये सूट नहीं करता है, चलो इसका नाम हम रखते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इन लीडरों ने ए.ओ. ह्यूम के साथ मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इंडियन नेशनल यूनियन, उसको नाम चेंज करके अब आईएनसी रखा। और आईएनसी का पहला सेशन जो हुआ वो 1885 में हुआ। जो फिर फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल कॉलेज संस्कृत का, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, जो बॉम्बे में हुआ। और इसके जो हेड थे, प्रेसिडेंट कौन कर रहे थे इसको, वो थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि आईएनसी का जो पहला इजलास बॉम्बे में हुआ उसको कौन प्रेजाइड कर रहे थे, तो वो थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। ये बात आपको याद रखनी है कि डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने
पहला जो आईएनसी का इजलास हुआ उसको WC बनर्जी ने उसकी प्रेजाइड किया था। और दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो पहला आईएनसी का इजलास हुआ उसमें कितने लोगों ने शिरकत की, तो उसमें 72 डेलीगेट्स शामिल हुए। आईएनसी का जो पहला इजलास बॉम्बे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ WC बनर्जी की प्रेसिडेंटशिप में, उसमें 72 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। और उन्होंने उसी इजलास में उन्होंने ये भी तय किया कि अब आज के बाद 1885 में पहला इजलास हुआ, अब आज के बाद इसका हर साल एक एक इजलास होगा और वो भी हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में होगा, एक ही जगह नहीं होगा। इसका कोई एक ही इन्होंने ऑफिस नहीं बनाया था, एक ही वेन्यू नहीं रखा। इन्होंने कहा कि आज के बाद इसके अलग अलग शहरों में अलग अलग वेन्यूज होंगे और हर साल इसका एक एक इजलास हुआ करेगा। और ऐसा ही होता गया कि हर साल आईएनसी का एक एक इजलास होता गया और डिफरेंट जो इसके बड़े बड़े जो फाउंडिंग लीडर्स थे वो इसके प्रेसिडेंट बनते रहे। और आगे क्या हुआ कि पहले कहते हैं कि 1885 से 1905 तक का जो फेज था इसको कहते हैं मॉडरेट फेज ऑफ आईएनसी, जो हिंदुस्तान की आज़ादी का मॉडरेट फेज। ये मॉडरेट क्यों थे? ये नहीं चाहते थे कि हम एग्रेसिव हो जाए कि नहीं हमें इसी वक्त आज़ादी दे, क्योंकि उस वक्त बड़ी मुश्किल से ब्रिटिशर्स ने इनको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की इजाज़त दी थी, इनको एक जगह जमा होने की इजाज़त दे दी थी। और ये नहीं चाहते थे कि हम अभी इसको इतना एग्रेसिव दिखाए कि ये इस पर पाबंदी ही लगा दे। तो इन्होंने मॉडरेट रहना ही पसंद किया ताकि मॉडरेट रहकर ही ये अपना काम कर सके। और जो पहला इसका जो 2 डिकेड्स थे, उन 2 डिकेड्स को मॉडरेट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है। और उसके बाद हम जो 1905 के बाद 1907 जो सूरत स्प्लिट हुआ उसमें फिर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स अलग हो गई, आईएनसी 2 भागों में बढ़ गई। वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। आज के लिए मैंने ये थोड़ा बहुत आपके सामने जो हमारा पेंडिंग रहा था और रिवोल्ट ऑफ 1857 और ये आईएनसी की जो फाउंडेशन थी ये हमने डिस्कस की। और आप लोगों के दिमाग में, बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि मूवमेंट्स पर क्वेश्चन आते हैं, जो सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे उन पे क्वेश्चन आते, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वो इसके साथ मिक्स नहीं करूंगा मैं। उसके लिए मैं आपको एक अलग लेक्चर दूंगा, वो तकरीबन 1 घंटे में पूरा का पूरा क्लियर होगा। 40-50 मिनट या आपको 1 घंटे में वो हम क्लियर करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता वो मिक्स करें इसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी जो जूनियर असिस्टेंट का और पटवारी का एग्ज़ाम डेट निकल चुका है और हमें इस वक्त थोड़ा स्पीड पकड़ने की ज़रूरत है। हमें उन टॉपिकों पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए जहां से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस है। हम चाहते हैं कि कुछ 5-6 लेक्चरों में हम ये हिस्ट्री का जो पोर्शन है ये ख़त्म करें और हम दूसरे कंपोनेंट पर चलें, क्योंकि हमारे पास 1-1.25 महीना रह गया है और इसमें हमें बहुत सारा काम करना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज के लेक्चर पसंद आएगा और आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इसको अच्छी तरह देखें। जहाँ पर कहीं पर आपको लगे कि आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर कहीं पर लगे कि मैंने कोई फिगर्स में कहीं पर मैं गलत हूँ या कहीं स्लिपिंग ऑफ टंग भी होती है, कहीं कुछ बोलना कुछ होता है और ज़ुबान से कुछ और निकल जाता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मेरे लेक्चर को देखें आप। और अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनके एग्ज़ाम अब आने वाले वक्त में देने हैं उनके साथ भी इसको शेयर कीजिए आप, और हम इंशाअल्लाह मिलकर तैयारी करेंगे और आपके लिए हमेशा हम हाजिर रहेंगे। कहीं पर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी हो, जहाँ तक मुझे आएगा मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। बाकी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर तक अल्लाह निगहबान।